پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سابق صدر جناب آصف زرداری اور جناب بلاول بھٹو صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج وہ میری دعوت پہ، ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یوم کشمیر ہے اور پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مگر 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، زیادتی کی انتہا کر دی۔ 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا، وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی، کشمیر کی بات نہ کی گئی۔ اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی، سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے PTI نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے
हर जगह बसेरे डेरे डाल रखे हैं। और ये मैं नहीं, दुनिया के जो सर्वेज हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरा सबसे महंगाई के हवाले से महंगा मुल्क है। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरस गया है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है, और एक बीमार माँ के लिए, उनके बच्चों के लिए दवाई हासिल करना महाल हो चुका है। बेवा और यतीम, उनके सर के ऊपर कोई दस्त शफ़क़त देने वाला नहीं रहा, और इस मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी ने तबाही मचा दी है। आज आप देखें, लोग हाथ उठा के आसमानों की तरफ देखते हैं और दिन रात दुआ करते हैं कि कब इस पाकिस्तान की नाकाम तरीन, करप्ट, इनएफिशिएंट और ना तजुर्बाकार हुकूमत से जान छूटेगी, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कौम को धोखा देते रहते हैं, यू टर्न मारते हैं, और सारा इनका ज़ोर मुखालफिन के ऊपर है। सारा इनकी कुव्वत मुखालफिन को गालियां देने के सिवा और उनको आवाम के सामने उनको यानी बुरा भला कहने के अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। अगर यही तवानाई, यही वक्त का आधा हिस्सा ये अगर मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करते तो पाकिस्तान आज इस तबाही का शिकार न होता। 74 साल में देखती आंख ने इस तरह का तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। आज जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि जनाब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए, हमने इनको, और मेरी भतीजी मरियम नवाज़ शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमदा शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, हम सब ने इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा है। और आज हमने इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत गरी है, चाहे वो माशी तबाही है, चाहे वो IMF के हवाले से मज़ीद जो कर्ज़े लिए गए हैं और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उन कर्ज़ों में जकड़ दिया गया है, और कर्ज़े दिन रात, इसके अलावा कोई और बात सुनने को नहीं मिलती। आप सुन रहे हैं कि जनाब चीन तशरीफ़ ले गए हैं, वहाँ से भी कर्ज़े लेने हैं। मैं आपको ख़ुद नुमाई में जाए बगैर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ के दौर में भी कर्ज़े लिए गए, मगर जो कुछ तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से जो कुछ हुआ उनके दौर में, वो आपके सामने है। और PTI इमरान नियाज़ी के दौर में जो कर्ज़े लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्ज़े लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खरबों रुपए के कर्ज़े ले लिए, कहीं नई एक ईंट आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, तख्तियाँ आपको नवाज़ शरीफ की लगाई हुई, उनके जो प्रोजेक्ट्स जो इनाग्रेट हुए उनके ऊपर तख्तियाँ आपको दिन रात ही लगा रहे हैं बग़ैर किसी शर्म के। कोई इनको शर्म नहीं इस बात की, मगर वो डटाई के साथ कर रहे हैं। मगर पाकिस्तानी कौम का क्या सवारा, खुशहाली तरक्की के हवाले से क्या किया? आज हर तरफ तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ हमें नज़र नहीं आता। लिहाजा आज हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमने आज इसके ऊपर, इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू की। और यकीनन हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, मोटो होता है, वो बजा। लेकिन जब कौमों की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल आन पड़े और ऐसी बदतरीन सूरत हाल से कोई कौम दो चार हो जाए, जबकि पूरी कौम दुखी है और खुदा से फजर में, तहज्जुद में, इशा में दुआ करती है कि हमें इस जालिम, करप्ट, इनएफिशिएंट हुकूमत से निजात दिलाए, तो उस सूरत को सामने रख के हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि अगर हमने आवाम की जो इस वक्त मंशा है, वो आवाम की मंशा आज उनके माथे पे लिखी है। कोई आपको उनसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल करने से पहले वो आपको
ٹھوک کے جواب دیتے ہیں کہ کب آپ ہماری اس حکومت سے جان چھڑوائیں گے. تو اگر ہم نے آج بطور سیاسی پارٹیز کے، سیاسی لیڈرز کے، سیاسی کارکنوں کے، اگر ہم نے اپنا جو رسپانسبل رول ادا نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے. لیکن جب میں نے کہا کہ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا، تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے، عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، اس سے عوام کو بچانے کے لیے، یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں، مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے، اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے پی ڈی ایم، اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فی الفور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان اپنا جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے. آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے. بلاول صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. مجھے، میرے والد صاحب کو، ہم دونوں نے یہ دعوت قبول کیا، اور میرا جنرل سیکرٹری پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ہیں. ہم قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب سے بھی کا بھی شکر گزار ہیں، مریم صاحبہ کا بھی ہم شکر گزار ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ یہ موقع فراہم کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جماعت کی تفصیل کانورسیشنز کے بعد کچھ اپنے سیاسی فیصلے لیے تھے، اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس بھی تھا، اور شہباز شریف صاحب کو وہ ہم سب مل کے نیشنل اسمبلی میں بجٹ کا ہم مخالفت کر رہے تھے. لیکن آج ہمارا پہلا آفیشیل انٹریکشن ہے، ملاقات ہے اس سی سی میٹنگ کے بعد، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے پورا مسلم لیگ نون کے سیاسی قیادت کے سامنے جو میرا پارٹی کا سوچ ہے، جو میرا پارٹی کا رائے ہے، جو میرا پارٹی کا پلان ہے، وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس پہ تفصیل بات چیت
हुई है और जो नून लीग ने और नून लीग के इत्तेहादियों ने अपने प्लान्स बनाए हैं वो भी हमारे सामने बात हुआ है और जो हमारे पार्टी के सजेशंस थे इंशाल्लाह ताला वो नून लीग के अंदरूनी मीटिंग्स में और उनके इत्तेहादियों के साथ भी बात होगा मगर ये मेरे ख़्याल में फ़ैसला बहुत ज़रूरी था कि जो मुश्किल हालात हैं जिस मुआशी बहरान से अवाम गुज़र रहे हैं जिस सतह तक बेरोज़गारी गुर्बत और महंगाई पहुंच चुका है आज कश्मीर का सॉलिडारिटी डे है हम हुकूमत का वज़रा का हम देख रहे हैं वो मगरमच्छ के आंसू तो रो रहे हैं मगर हर मौका पे हर ख़तरा पे हर कश्मीर के मसले पे वो ये यकजहती ना कौमी सतह पे ना नेशनल असम्बली में बना सके और ये मुल्क की तारीख़ का पहली बार है कि कश्मीर कॉज जो हर पाकिस्तानी का दिल का इतना अहम इशू है ये हुकूमत इतना नालायक है कि चले मईशत पे हमारा कंसेंसस नहीं बनाया सियासी हमारा कंसेंसस ना हो मगर कश्मीर तक वो अपना पॉलिसी पे वो जो क्लैरिटी है और जो कंसेंसस होना चाहिए वो नहीं दिखा सके जैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब ने कहा दहशत गर्दी का जो लहर है वो फिर से सामने आ रहा है जिस तेज़ी से इंसिडेंट्स में इजाफ़ा हो रहा है जो पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं ये बहुत कंसर्निंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर स्टांस है जहाँ तक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की बात है सियासी सतह पर जो पोलराइजेशन हो चुका है हुकूमत का किरदार ना लहकी ना अहली अब सब के सामने हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जो अपोजिशन के जमातें हैं जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफ़ा होगा जितना हमारा कोऑर्डिनेशन में इजाफ़ा होगा उतना ही ज़्यादा बोझ उतना ही ज़्यादा ख़तरा हुकूमत को होगा और हम शहबाज शरीफ साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पॉइंट का क्रेडिट ज़रूर देते हैं कि जैसे सियासी जमातों का मुख्तलिफ राय होते हैं मुख्तलिफ नज़रिया होते हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और जब हम हमारे जमातें या दूसरे जमातें के दरमियान थोड़ा फ़ासला हो भी किसी पॉइंट पे शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी जो उसका ज़िम्मेदारी है बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उससे पीछे नहीं हटा और जो भी पार्टीज़ के अपने अपने राय रखते हुए उन सूरत हाल के बावजूद जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है हमें इकट्ठा रखा और हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है और हमारा ये ख्याल है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए जो पार्लिमानी जमहूरी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे इस मुल्क को हमने बचाना है पाकिस्तान को हमने बचाना है तो इमरान को हमें निकालना है बाकी पॉइंट्स पे बाकी इश्यूज़ पे हमारा अपना अपना मंशूर बेशक रहे लेकिन अवाम के मुतालबा अवाम को जो चाहे इस वक्त वो यही है जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है जहाँ तक अवाम का मुतालबा की बात है वो वहाँ तक तो मुस्लिम लीग नून हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े सर बात ये है कि मुस्लिम बात कर लें पहले मुस्लिम नून की जानिब से सर जो सियासी अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ईवान से या तो अपोजिशन की सियासी जमातें इस्तीफे देंगी या अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी दूसरी बात ये है कि इन दोनों में किस ऑप्शन पे इत्तेफाक हुआ है और दूसरी बात ये कि दोनों सियासी जमातें जो बड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की है क्या दोनों सियासी जमातें एक दूसरे की हेल्प करेंगी लॉन्ग मार्च में हमारी इन तमाम इश्यूज़ पे बात हुई है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें
ये डिस्कस हुआ कि क्या जो लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी ने जिसका ऐलान किया है और जो लॉन्ग मार्च PDM ने जिसका ऐलान किया है, इसमें हम किस किस्म की हम आंगी और कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हैं। इसमें 2-3 राय सामने आई, बड़ी मस्बत। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमारी तरफ से भी हमने कहा, और इंशाअल्लाह उस डिस्कशन के रोशनी में हम अपनी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये लेके जाएंगे और फिर PDM में, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मस्बत बात सामने आएगी। दूसरी बात आपने जो कही अदम एतमाद की, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, ख़ुद मोहतरम बिलावल साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है, और उसको हम इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उनको मुसीबत और मुश्किलात और इस हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और PDM की मीटिंग होगी, उसके बारे में शहबाज साहब, दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों और पीपल्स पार्टी, अरकान असेंबली की भी आपके यहाँ पर मौजूद है, अरकान भी मौजूद है, मिलकर अदम एतमाद पर आप लोगों पर में इत्तेफाक हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद? बिल्कुल, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने बताया आपको कि पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। अगले चंद दिन में हमारी बात हुई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी कायद से कि मीटिंग बुलाएं, और फिर उसके बाद हम PDM में ले जाएंगे, और चंद दिनों में इसका हम PDM की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। एक मिनट, नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी? दूसरा ये, क्या इदारों ने गैर जानबदारी के सिग्नल दे दिए आपको? बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से? मुझे बताएं आप ज़रा, कोई खुदा का खौफ करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क के 22 करोड़ आवाम, इससे ज़्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। तो उसके बाद ना जाने आप किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, वो तो आप इस लाहौर में प्रवेश मार लेते हैं। शहबाज साहब, आपने जो बात की है आइनी तौर पर, आपने कहा आइनी हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, बिलावल ने भी वही बात की। अगर आइनी ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, इस हुकूमत को घर बेचते हैं, तो बकाया जो उनका टेन्योर है, क्या आप में से कोई इसके ऊपर भी बात हुई है कि उसका वजन कौन उठाएगा? उन गुनाहों का जो 3.5 साल के हैं, जो मईशत जिस तरह गिरी हुई है, दहशत गर्दी आ गई है, उसकी तमाम जो है उसके ऊपर आप लोगों को क्या है कि पीपल्स पार्टी आगे आएगी या आपके? तो ये सारी बात मैं अभी बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। आरिफ बात करें, आरिफ बात करें। ये बताइएगा कि आप लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपने शहबाज शरीफ को दावत दे दी है, और क्या ये शामिल होंगे उस लॉन्ग मार्च में? अभी तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है, और PDM का अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान है। हमने PDM का लॉन्ग मार्च को वेलकम किया है, और शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का वेलकम किया है। और जैसे मैंने अपने इब्तिदाई पोर्शन में कहा था, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा उतना ही बेहतर इम्पैक्ट होगा। एक सेकंड, आरिफ उल्फत को बात करेगा कि शायद अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने निकला था लेकिन खुद टूट गया। तो क्या क़यादत पर भी कोई गौर करेंगे कि ऐसे क्या अवामिल थे कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को अपने इत्तेहाद से अलग करके इमरान खान साहब को और मजबूत कर दिया? टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह बहुत में ऐसे नहीं करे बात, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं। बस बढ़िया, बस पॉलिटिकल क्लैशेस थे बिलावल साहब के भी और आपके क्लैशेस थे पॉलिटिकली, और आप लोग मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है।
کلیشز بھی آتے ہیں، لیکن جو چیز بلاول کو ہم سب کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز، اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ اب سلیکٹڈ کون ہے؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے، اب بتا دیں اب سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بہت خوش گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے، مریم شہباز شریف صاحبہ کہ ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرکزی قیادت ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے ہمارے پاس، اس آپشن کو بہت سنجیدگی سے ہم لیں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر کافی حد تک کنسنسس ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد اگلے چند دن میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے عدم اعتماد کے ساتھ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم وہ طریقہ اپنائیں گے۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ تمام سیاسی قانونی آئینی آپشنز پر عمل درآمد کرنا ہوگا، نون لیگ کے اندر اور پی ڈی ایم میں بھی اس معاملے کو لے کر جائیں گے، ہم لاہعمل ملک کے لیے بنا رہے ہیں اور مل کر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ آج ہمیں ایک نقطے پر یکسو ہونا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس حکومت سے نجات دلانی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں بنانا ہوگا، کوآرڈینیشن مزید بہتر کرنا ہوگی، اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آگے بڑھیں گے تو حکومت زیادہ پریشر میں آئے گی۔ پارلیمان کا اعتماد بھی اب اٹھنا چاہیے، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، اور وہ عدم اعتماد کی طرف یہ نشاندہی کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا پھر واضح طور پر کہ عدم اعتماد کا آپشن اس کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو عمران کو نکالنا ہوگا، یہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کہا۔ پھر عدم اعتماد سے متعلق سوالات بھی ہوئے میاں شہباز شریف سے بھی اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے عدم اعتماد کے ساتھ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ اپنائیں گے۔ عمران خان کے ہٹانے کے لیے ہم تمام اختلافات بھلانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیب، آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جب ملاقات کے بعد مرکزی قائدین نے بات کی ہے تو بلاول بھٹو زرداری بھی اور شہباز شریف بھی دونوں ہی اس چیز پر متفق نظر آئے کہ جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وہ طریقہ کار اپنائیں گے، تو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے کہ بلاول صاحب تشریف لائے ہیں، شہباز شریف صاحب کے گھر پہلے بھی آئے تھے، اور میرے خیال میں متعدد دفعہ یہ اس ارادے کا میرے خیال میں یہ بتا چکے ہیں اس ارادے کے بارے میں کہ ہم حکومت سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور پی ڈی ایم دیکھ لیجئے، پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی کا نکلنا دیکھ لیجئے۔ اب یہ ارادے تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اگر اس کی پریکٹیکل سائڈ دیکھیں، یہ بات فیکٹ ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، ریکارڈ مہنگائی ہے۔ حکومت کے حوالے سے ایک تاثر قائم ہے کہ بہت مہنگی حکومت ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اس خطے کے اندر پاکستان جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ جو فگر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایشو یہاں یہ ہے کہ جب کوئی ڈیفینیٹو بات کی جاتی ہے، جیسے آج بھی شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بہت زیادہ سوچ بچار کیا ہے کہ ہم کس طرح ہم آگے لائیں، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں اور قانونی تمام آپشنز استعمال کریں، تو میں بڑے سادہ الفاظ میں قانونی آپشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیو نیوز کے ویورز کے سامنے بھی، کہ بڑا کلیئر ہے آئین کے اندر آرٹیکل 95 ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، یعنی تحریک عدم اعتماد کا۔ ٹوٹل جو ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا 20% اگر تعداد ہو ممبرز کی، یعنی 20%، اس سے آپ تحریک عدم اعتماد کو ٹیبل کر سکتے ہیں۔ میکسیمم 7 دن کے اندر آپ نے ووٹ کرنا ہے، اور پھر میجورٹی جو ہے اگر وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے تو وزیر اعظم فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کیپنگ ان ویو جو ابھی ریسنٹلی سینٹ میں ہوا، جو اس سے پہلے
चेयरमैन सेनेट के हवाले से हुआ, फिर उसके लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के अंदर वहां पर जो मामलात हुए, जो वहां पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपोजिशन का, और जिस तरह अपोजिशन के साथ हाथ हो जाता है, तो मुझे तो बड़ा हैरत होती है कि ये अब भी ये सोच रहे हैं। और अगर ये सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये पब्लिक डिस्प्ले और है, इनको खुद ये इशू है कि क्या हमारे साथ हमारी अपनी अपोजिशन के एलाइज, पूरी अपोजिशन खड़ी होगी इमरान खान साहब को निकालने के लिए? क्या उनको वो सपोर्ट या वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के और बगैर चंद फोन कॉल्स के वो चल सकते हैं आगे? क्या हुकूमत के जिन लोगों का ये जिक्र करते हैं कि वो हमारे साथ राब्ते में है, क्या वो लोग बगैर किसी खौफ और खतरे के इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दे सकते हैं तरीके अदम एतमाद में? ये तमाम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दूसरी बात मैं हैरत होती है मुझे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी आप हम कोई सिग्नल्स पे चल रहे हैं। भाई मसद एहतराम, पूरी अपोजिशन तो इस सिग्नल के ही इंतजार में है, अब से नहीं है, बड़े अरसे से है, और ये सिग्नल्स मैटर करते हैं। मैं उन्हें बिल्कुल मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, ये सिग्नल्स मैटर करते हैं। आज अगर अपोजिशन ने कुछ करना है या कामयाब होना है तो उनको वो, मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं अब भी कहूंगा कि उन्हें वो सपोर्ट दरकार है, क्योंकि वो अपने अपोजिशन के एलाइज के ऊपर भी एतबार नहीं कर सकते कि क्या ये हमारे साथ खड़े होंगे, क्या पूरी अपोजिशन यकमुश्त वोट देगी इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद में। इस पे भी इशू है। अब ये तो बात की बात है कि जो हुकूमती बेंचेस हैं या हुकूमती एलाइज हैं वो इमरान खान साहब को निकालने में साथ देंगे या नहीं देंगे, तो कानूनी ऑप्शन तो ये है। बाकी जहाँ तक लॉन्ग मार्चेस की बात है, जब आप ये कह रहे हैं कि हमने आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं, तो लॉन्ग मार्चेस तो फिर अलामती हैं। आप आएंगे, आप यहाँ पर एक छोटा मोटा शो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे हुकूमत नहीं जाएगी। इमरान खान साहब आए, उनके साथ उस वक्त तक सपोर्ट भी थी 2014 में, फिर भी वो हुकूमत नहीं गिरा पाए। आज क्या अपोजिशन के पास किसी तरह की कोई सपोर्ट मौजूद है? और अगर नहीं है तो फिर ये आएंगे और अलामती सा वो सारा डिस्प्ले होगा, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं होगा। जी, मुनीब हमारे साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया। साहब, तहरीक अदम एतमाद की एक तो बात हुई और बिलावल शुरू से इस मौक़िफ़ पर कायम है, शहबाज शरीफ ने इसका इजहार भी किया, लेकिन नून लीग के अंदर अभी इसमें कंसेंसस हो रहा है और फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हट के ये मुलाकात है, तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है कि दोनों जमातें मिलके कोई मुश्तरका लाहेअमल बनाने की तरफ तो नहीं जा रही हैं। क्योंकि मौलाना फजल रहमान का 2 दिन पहले का बयान पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ा कैजुअल अप्रोच थी कि अगर आना चाहती है पीपल्स पार्टी तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। तो वो ज़्यादा मद्देनजर नहीं रख रहे इस चीज़ को। देखिए, अगर मैं आज की मुलाकात में इससे ज़्यादा मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता कि एग्री टू डिसएग्री। यानी ऐन मुमकिन है कि अब से आज से जो है 1-2 हफ्ते पहले हम एक दूसरे के खिलाफ बयानात ना देखें। मुस्लिम लीग नून भी बहुत आगे चली गई थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, और पीपल्स पार्टी भी बहुत आगे चली गई थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से। लेकिन जो नेशनल असेंबली में मनी बिल के ऊपर हुआ, जो सेनेट के अंदर स्टेट बैंक वाले उस पर हुआ, उसमें शायद ये रियलाइजेशन आई है कि ये अगर हमारा लॉन्ग मार्च भी मीनिंगलेस होगा अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे। तो आज की जो मुलाकात के बाद जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई मुझे, वो मरियम नवाज साहिबा एक तरफ खड़ी थी, बिलावल भुट्टो दूसरी तरफ खड़े थे, और बीच में शहबाज शरीफ खड़े थे। और यही इन दोनों की सियासत के बीच में शहबाज शरीफ खड़े हैं। 2 एक्सट्रीम्स हैं जिसके बीच में शहबाज शरीफ जो है इनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आज की जो मुलाकात है वो उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि मुलाकात से पहले अगर सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता कि आप किस लाएमल के साथ जाएंगे मुलाकात में, और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक जो है मिलेगी। तो जो आज की जो बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, जो शहबाज शरीफ साहब जब बातचीत कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब का अपना जो बयानिया है बस उन्होंने उस बयानिए को सामने रखा, और वो चाहते हैं कि इस हवाले से गालिबन लॉन्ग मार्च के ऊपर कोई कंसेंसस हो जाए, कि कोई एक लॉन्ग मार्च हो जाए। बाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही पीडीएम है। नून और पीपल्स पार्टी का इकट्ठा होना ही पीडीएम को मजबूत करेगा। इकट्ठा नहीं होंगे तो पीडीएम अपने रास्ते पर खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी अपने रास्ते पर खड़ी होगी। जो इस वक्त चैलेंजर हैं दोनों पार्टीज के अंदर, ये रियलाइजेशन है कि वो इमरान खान को डिसलॉज नहीं कर सकते। उन्हें अंदाजा हो गया, उन्हें इतने अरसे में अंदाजा हो गया कि अगर सेनेट में जहां मेजॉरिटी है अपोजिशन की, वहां वो इमरान खान के लिए खतरा नहीं बन सके तो कौमी असेंबली में कैसे खतरा बनेंगे। तो पंजाब असेंबली के बारे में नून लीग का अपना एक मौक़िफ़ है। तो फिर मिलकर क्या करेंगे साहब? फिर मिलकर क्या करेंगे? पार्लियामान में भी जब आप कह रहे नहीं हो पाएगा तो स्ट्रीट्स पे भी
देखिए दो तीन चीजें अभी सामने आने वाली हैं। एक तो लोकल बॉडीज पंजाब में आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन, पीपल्स पार्टी को अंदाजा है, वो ये चाह रही है कि पंजाब में कोई इस तरह का बने। असल उनके लिए ये है कि ये मुलाकात ये है कि कम से कम जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं उनके दरमियान, उसको किसी हद तक कम किया जाए, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं उसमें दोनों लूजर्स नजर आ रहे हैं। जो चैलेंजेस हैं उनमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अकेली भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती और पीएमएलएन अकेली भी पीपल्स पार्टी का पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। तो उनके अंदर ये जी पास को इतना बढ़ा दिया है हमने कि जिसका फायदा जो है वो हुकूमत को हो रहा है। अब ये क्या इकट्ठे हो सके, ये लगता ये है कि आज की मुलाकात में वो जो हार्ड पोजीशंस हैं उसको किसी हद तक नरम करने की कोशिश की गई है, कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ कोई मुश्तरका लाएअमल, उसके लिए मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जरदारी साहब की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, तो लगता यही है कि ये बहुत वाज़े एक दूसरे की पोजीशंस हैं जिसको वो लेकर आए थे कि इस पोजीशन पे अगर हम इकट्ठा चल सकते हैं तो पीपल्स पार्टी ने अपने ऑप्शन रख दिए हैं, नून लीग ने अपने ऑप्शन रख दिए हैं। मेरा ख्याल है अगले 1-2 हफ्ते में दोबारा इनकी गालबन जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है उससे पहले 1 हफ्ते में दोबारा मुलाकात हो सकती है। ऐन मुमकिन है कि जिसके बाद कोई ज्यादा ठोस चीज हमारे सामने आएगी या ठोस चीज जो है फिर सामने आ सकती है। ठीक है मजहर साहब।